Good morning, students. I hope and wish you all are safe. In the previous classes, we will discuss about the some communication terms, some communication skills. So now I hope you all are just understand about that communication skill, and I hope you all are utilized into your daily life that things जो हमने पहले के क्लास में पढ़ा इसे अपने डेली लाइफ में अपनाना भी है और अपनाने के साथ साथ उसको प्रैक्टिस में लाना है। ठीक है, इसलिए हम लोग कम्युनिकेशन स्किल पढ़ने का या पढ़ाने का मेरा मकसद बस वही था कि आप लोग उन चीज़ों को अपने डेली लाइफ में उतार सको। चलो खैर, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट आर रिलेटेड टू द स्प्रेडशीट। इससे पहले हम लोगों ने वर्ड देखा था, वर्ड प्रोसेसर देखा था। अब हम लोग स्प्रेडशीट का एक ओवरव्यू देखते हैं, फिर हम लोग आगे देखेंगे इसके और भी बहुत सारे यूजेस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग इसके बेसिक चीज़ों को जान लें कि आखिर इस स्प्रेडशीट में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कैसे कैसे किन किन चीज़ों को हम लोग प्रयोग करते हैं। सो इन सारी चीज़ों को हम लोग सबसे पहले देख लें। So now spreadsheet is generally used for what? Which purpose? Spreadsheet is generally used for the calculative purpose, for just preparing some data also. When we just create a document like a data in a data sheet, so that time you have to just create the spreadsheet, and into the spreadsheet we have to just calculate the data also. We have to just put the different types of formula into the spreadsheet, and then we can perform the calculations. So now there are some components of the spreadsheet, there are some parts of the spreadsheet. So first we have to just learn about the some components of the spreadsheet. The first component, that is a like a worksheet. So first one, that is a worksheet. So worksheet is a grid of cells made up of the horizontal row and the column. You know, we all know about that worksheet is just a grid of cells, and it's a combination of a horizontal row and the vertical कॉलम। ये जो वर्कशीट होता है वो क्या होता है, हॉरिजेंटल रॉ होता है और वर्टिकल कॉलम होता है, और ये ग्रिड नुमा, ग्रिड के टाइप का जो है स्क्रीन आपको दिखता है। इट हैज़ अ रॉ एंड द कॉलम, इट हैज़ अ सेल ऑल्सो। आफ्टर द इंटरसेक्शन ऑफ द रॉ एंड कॉलम the rectangular part will be created, that is a cell. So worksheet is a just grid of made up by the grid of cells in the horizontal of row and the column also. So now into the worksheet contains 65,536. This is the important point. Worksheet contains 65,536 rows and 1024 column. That means 1024 columns. So in a spreadsheet there is a 65,536 rows and 1024 columns. So ये क्या होते हैं, raw और columns होते हैं. So you have to just learn, you have to just write the important points for that point. So now there is a raw number. So raw number क्या होता है? Raw number is a number of rows that are just show into the left panel, left side window, after the just before after the spreadsheet. into the left side of the window there is a raw number. spreadsheet के जो लेफ्ट साइड में जो विंडो होता है, लेफ्ट साइड में आपको दिखता होगा कि वहाँ पे रॉ नंबर होता है 1 2 3 4। दीज आर द रॉ नंबर। दैट मीन्स कि ये जो हमने बताया कि रॉ नंबर 65,536, तो ये 1 2 3 4 अप टू 65,536 तक रॉ ये जाता है। उसके बाद रॉ नहीं जाता है, उसके बाद हमें दूसरे सीट को बनाना होता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ लाइक कॉलम नंबर। कॉलम नंबर भी होता है, सो उसे कॉलम लेटर बोलते हैं हम लोग। सो कॉलम लेटर, दैट मीन्स इट इज़ स्टार्टिंग विद द लेटर्स लाइक स्मॉल लेटर्स और लाइक ABCD। सो एंड अप टू लाइक व्हाट 1024। अब यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि हमारे पास कैरेक्टर है, हमारा जो लेटर्स होता है, अल्फ़ाबेट जो होता है वो 26 अल्फ़ाबेट होता है, बट हमारे पास कॉलम जो है 1024 कॉलम्स हैं। सो ये कैसे मैनेज होता है? सो पहले तो A से लेके Z तक लिखा जाता है, एंड देन फिर से क्या होता है AA, AB, AC, फिर से AAA। तो इस टाइप से वो 1024 तक जाता है। आप लोग देखोगे जब स्प्रेडशीट मैं दिखाऊंगा तो उसमें आप लोग देखोगे कि कैसे कैसे कॉलम नंबर चलता है। नाउ सेल वी ऑल नो अबाउट दैट। सेल इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ like a row and column, intersection of row and column, not a combination of, it's an intersection of row and column. row and column के कटने से, इंटरसेक्शन से जो एक रेक्टेंगुलर पार्ट बनता है, that is a cell.
सो नाउ सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ द वर्कशीट, इसको हम लोग बेसिक यूनिट बोलते हैं, वेयर वी कैन जस्ट राइट द नंबर्स, टेक्स्ट एट्सेट्रा, सो और द फार्मूला आल्सो। सो सेल में ही हम लोग क्या करते हैं, नंबर लिखते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं, फार्मूला लिखते हैं, और ये सारी चीज़ें हमारे स्क्रीन पे ही रहती है। सो नाउ सेल इज फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, मैं बता चुका हूँ। नाउ सेल पॉइंटर, so cell pointer, it is a boundary that specifies which cell is active at that moment. That means cell pointer, when you are just click on that particular cell, then it will be active. जब तो आप सेल पे क्लिक करते हो तो वो एक हाईलाइटेड टाइप का दिखता है, देखते हैं जब भी हम लोग उस पर क्लिक करते हैं तो वो एक हाईलाइटेड दिख जाता है। सो दैट इज़ उसे हम लोग एक्टिव सेल भी बोलते हैं। एंड वो जो पॉइंटर है जो हमारा सेल हमारा एक्टिवेट हो गया, दैट इज़ कॉल्ड द सेल पॉइंटर, वही हमारा सेल पॉइंटर कहलाता है। दैट मीन्स कि वो सेल हाईलाइट है। नाउ करंट सेल इज अ एक्टिव सेल, जो हमने सेल को सेलेक्ट किया, दैट इज़ अ करंट सेल, उसे हम लोग करंट सेल बोलते हैं। नाउ रेंज ऑफ सेल इज अ ग्रुप ऑफ कॉन्टिग्यूअस और डिसकंटिन्यूअस सेल। सो ये जो रेंज ऑफ सेल होता है ये कॉन्टिग्यूअस होता है, यानी कि जो अगर आप मल्टीपल सेल्स को सेलेक्ट करते हो, बट ये कंटिन्यूअस वे में सेलेक्ट करना पड़ता है, 1 2 3। अगर हमने A1 को सेलेक्ट किया, अगर ए रॉ को सेलेक्ट करना तो A1 A2 A3, या कॉलम को सेलेक्ट करना है तो लाइक A1 A2 A3, और इधर अगर रॉ को सेलेक्ट करना है तो A1 B1 C1 D1। सो दीज आर द लाइक कॉन्टिग्यूअस सेलेक्शन, इसे ही हम लोग बोलते हैं कंटिग्यूअस सेलेक्शन। और डिसकंटिन्यूअस सेलेक्शन होता है कि अगर हम 1 बाई 1 एक यहाँ पे सेलेक्ट किया, दूसरा कहीं और सेलेक्ट किया, तीसरा कहीं और सेलेक्ट किया, तो उसे हम लोग बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस रेंज ऑफ सेल। सो रेंज ऑफ सेल is a very important things while we writing the formula. Just we perform the multiple types of cells into our formula. That time the range of cells will be very useful on that particular manner. And range of cell declare by the colon, when we just declare the range of cell like A1 to A6। अगर हमें सेल को सेलेक्ट करना है, बाय द वे एक सिंपल सा एग्जांपल है, वैसे मैं प्रैक्टिकल में समझाऊंगा ही। अगर हमें A1 से A6 तक के सम को निकालना है, सो उस कंडीशन में अगर हम रेंज डिक्लेयर करते हैं, तो रेंज डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले तो हमारा सिंबल होता है कोलोन, हमें कोलोन सिंबल यूज करना होता है। अब कैसे डिक्लेयर करेंगे? सो A1 कोलोन A6, सो A1 कोलोन A6, दैट मीन्स इट इज जस्ट लाइक 2 डॉट्स अप एंड डाउन, ये 2 डॉट होता है, ऊपर नीचे डॉट्स होता है, एंड दैट डॉट डिनोट्स द रेंज ऑफ सेल की A1 से A6 तक का जो सेल है वो एक साथ सिलेक्शन में आएगा। सो नाउ क्लियर है सबका? Now next point, that is a status bar, menu bar and the tool bar. So status bar, menu bar और tool bar क्या होता है? So status bar generally display the status of the document. That means while you are editing in the document or not, when you are ready, when you are save the document, that it will be just display the ready mode. And when you just edit something, when you just put up something, insert something, that type the status bar shows it is in editable mode. And into the status bar there is a word count will be also displayed, cell count will be also displayed into the status bar. Now menu bar that contains a different types of menus, different types of tools that are into the menu bar. Like when you click on the menu bar, there is a like a new, open, file, save as. So these are the some different types of options that are related to the spreadsheet action. सो स्प्रेडशीट एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे जो फंक्शंस होते हैं वो हमारे फाइल या मेनू बार में डिस्प्ले होते हैं। नाउ टूल बार, so toolbar that contains a different toolbar, that means it's a standard toolbar. So standard toolbar contains a different types of tool into the just below of the menu bar. जो ये जो टूल बार होता है ये आपके स्क्रीन पे होता है, ये मेनू बार के जस्ट नीचे होता है, और उसमें टूल बार में बहुत सारे टूल्स जो सिंपल टूल्स होते हैं, जो नॉर्मली जो हम लोग इजी यूज़ कर सकते हैं, वो सारे टूल्स हमारे टूल बार में डिस्प्ले करते हैं। जनरली मैक्सिमम टूल्स हमारे टूल बार पे डिस्प्ले हो सकता है, और अगर हम चाहें तो कुछ और टूल्स को भी डालना, तो वो टूल्स भी हम लोग वहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। सो दिस इज़ द टूल बार. So I hope you all are understand about these things. Now the next topic, that is quitting from workbook. That means कि when you are exit, when we want to just exit into the worksheet, then what is the process to exit? So there is a
two process. The first one, that is into the right upper side of the screen, there is a close button. There is a three buttons like minimize, maximize and close. So when you click on the close, then the workbook will be closed. And another one, that is a when you click on the file menu, that time there is a option of exit. There is a different types of options like a new, open, recent file, save as. There is a one options like a exit. When you click on the exit button, then your workbook will be closed. सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एंटरिंग डेटा इनटू द वर्कशीट. अब हम लोग डेटा कैसे एंटर करते हैं वर्कशीट पे. सो देयर इज अ लाइक different types of the like when we enter the data into the worksheet, first we have to just select the cell. सबसे पहले हमें क्या करना है, सेल को सेलेक्ट करना है. एंड आफ्टर सेलेक्टिंग द सेल, then we have to just put the data. That means there are different types of data like a number and टेक्स्ट और द फार्मूला ऑल्सो. सो सबसे पहले हमें सेल को एक्टिवेट करना पड़ता है बाय द क्लिकिंग. अगर हम लेफ्ट क्लिक करते हैं तो लेफ्ट क्लिक करने से हमारा सेल एक्टिवेट हो जाता है. और एक्टिवेट होने के साथ साथ अब हम उस पर जो भी डेटा है वो एंट्री कर सकते हैं. लाइक व्हेन वी जस्ट सेलेक्ट द सेल, नाउ इनटू द कीबोर्ड देयर इज अ नंबर एंड देयर इज अ टेक्स्ट. सो वी हैव टू जस्ट click the write the put the like number key. When we press the number key, then the number will be entered into the particular cell. When we press the text keys like alphabetical keys, then that alphabet is entered into the particular selected cell. सो अब यहाँ बात करें फार्मूला की. तो फार्मूला हम लोग डायरेक्टली इंटर नहीं कर सकते हैं. फार्मूला को इंटर करने के लिए सबसे पहले हमारा तरीका होता है कि सबसे पहले यू हैव टू जस्ट पुट अप द इक्वल टू साइन. विदाउट इक्वल टू साइन यू कैन नॉट इंटर एनी टाइप्स ऑफ फार्मूला. when you are entered the formula without equal to sign, then it is a general text or the numbers. सो जब भी आप विदाउट इक्वल टू साइन के आप यूज़ करते हो तो उस कंडीशन में वो एक जनरल टेक्स्ट और नंबर के रूप में आ जाएगा, वो फार्मूला नहीं लगेगा. तो फर्स्ट यू हैव टू जस्ट press the equal to sign and then you have to just write the formula. When you want to just add two cells like A1 and B1, अगर आप A1 और B1 को ऐड करना चाहते हो और C1 में डिस्प्ले हो तो you have to just click on the C1 cell. That means your cell is activated, and then first you have to just put the equal to sign into the keyboard and then write the formula A1 plus B1 and then press enter, so that formula will be entered into that particular cell C1. इसको मैं करके भी दिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में. So now next, that is editing data. Editing data हम लोग कैसे करते हैं, how to edit the data. Now there are two types of way to editing the data. जब हमारे पास ऑलरेडी डेटा हमारे किसी सेल में पहले से रख रखा है और हम चाहते हैं कि नहीं उसके डेटा को हम लोग एडिट कर सकें, तो यहाँ दो तरीके से हम लोग एडिट कर सकते हैं. एक तो डायरेक्टली ओवरराइट कर दें, और एक दूसरा तरीका होता है जिसको हम लोग सेल के अंदर जाके उसमें पर्टिकुलर जो लेटर मिस्टेक है या जो नंबर मिस्टेक है उस मिस्टेक को हम लोग वहाँ से हटा दें. तो ये दोनों तरीके को हम लोग देखेंगे. सो फर्स्ट यू हैव टू जस्ट एक्टिवेट द सेल को एक्टिवेट करना है वेयर यू कैन जस्ट एडिट द डेटा. सो द सेल विल बी हाईलाइटेड एंड देन write the text or a letter into your keyboard. अपने कीबोर्ड से डायरेक्टली उसमें लिख देना है, तो वो जो पुराना डेटा है वो हट जाएगा, नया वाला डेटा पुट हो जाएगा. बट वहीं पे अगर हम चाहते हैं कि नहीं हमारा जो उसमें लिखा हुआ है उसमें सारी चीज़ें गलत नहीं है, कुछ एक चीज़ें गलत है, कुछ एक लेटर गलत है या कुछ एक नंबर गलत है, मुझे बस सिर्फ उसे रिप्लेस करना है, पूरा का पूरा रिप्लेसमेंट नहीं करना है, तो उस कंडीशन में हम डबल क्लिक करेंगे तो हम उस सेल के अंदर चले जाएंगे. हमारा जो कर्सर है वो सेल के अंदर चला जाएगा. अब अपने सेल के कर्सर को जो नेविगेशन की होता है या तो माउस का जो पॉइंटर होता है उसके थ्रू अपने उस कर्सर को उस पर्टिकुलर प्लेस पे ले जाएंगे जहाँ से हमें डेटा को रिमूव करना है, जहाँ से हमें वो रॉन्ग जो लेटर है उसे हटा के वहाँ से करेक्ट लेटर डालना है, तो उसको वहाँ पे कर्सर को रखेंगे. एंड देन यू हैव टू जस्ट यूज़ द बैक स्पेस और द डिलीट की टू डिलीट द डेटा एंड नाउ प्रेस द न्यू लेटर दैट यू वांट टू एंटर. सो द सेल विल बी एडिटेड एंड देन प्रेस इंटर. जब इंटर प्रेस कर दोगे तो वो जो डेटा है वो जो प्रीवियस डेटा था वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा और न्यू डेटा वहाँ पे यूटिलाइज हो जाएगा. सो आई होप सबको समझ में आ रहा है, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए.
Now the next topic, that is copying and moving. So you all know about that, how to copy and how to move, but we will discuss again क्या क्या होता है, कैसे हम लोग कॉपी करते हैं, कैसे मूव करते हैं, सबसे पहले वो देखेंगे. So first, copy. So there are some steps to copy the some cells or data. सो फर्स्ट यू हैव टू जस्ट एक्टिवेट द सेल. सबसे पहले हमें कॉपी करने के लिए क्या करना पड़ता है, उस सेल को एक्टिवेट करना पड़ता है जिसे हमें कॉपी करना है. नाउ right click on the cell. When you just right click on the cell, there is a copy option, so you have to just click on the copy option. So copy option पे क्लिक करोगे तो वो जो सेल है वो कॉपी हो जाएगा और एक डॉटेड हैश लाइन के थ्रू वो सेल कवर अप हो जाएगा. वो चारों तरफ से उसके जितने भी बाउंड्री एरिया हैं वो कवर अप हो जाएंगे. हैश डॉट 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 करके, यानी डैश करके, डॉट नहीं बोल सकते आप, डैश डैश लाइन के थ्रू वो जो कंप्लीट बॉर्डर है वो उसका कवर हो जाएगा. दैट मीन्स द सेल इज copied. Now you can go to that place where you want to paste. Now again click to the right click on that particular place and then click to the paste option. जैसे ही आप पेस्ट पे क्लिक करोगे वो डेटा वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा. The another thing, दूसरा प्रोसेस होता है कि सेलेक्ट द सेल एंड देन प्रेस द शॉर्टकट की Ctrl+C. अगर हम Ctrl+C भी प्रेस करेंगे द सेल विल बी कॉपीड. वो सेल क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा. एंड नाउ मूव टू दैट प्लेस वेयर यू वांट टू पेस्ट. नाउ प्रेस द अगेन शॉर्टकट की ऑफ पेस्ट Ctrl+V. Ctrl+V जब प्रेस करेंगे तो वो जो कॉपीड डेटा है वो हमारा वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा. एक दूसरा प्रोसेस होता है, again select the data, select the cell, and then clipboard group there is also a copy and paste option. So you have to just click the copy option, the cell will be copied, and then again move to that place where you want to paste the data. Now go to the then clipboard option and then press the paste, then the data will be paste on that particular place. So this is the copy and paste of data. That means copy, that means your same data will be this place on that place both. जो copy का मतलब होता है, it's a copy, clone of the data, clone of the cell. उस सेल का जो क्लोन है यानी कि वो यहाँ भी रहेगा और वहाँ भी रहेगा. That is meaning of copy. And moving, that means it's a move from one place to the another place. Move का मतलब होता है ये एक जगह से हट गया और दूसरे जगह रखा गया. दैट इज कॉल्ड मूव. तो मूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वो भी देखेंगे. फॉर द मूविंग वी हैव टू जस्ट एक्टिवेट द सेल एंड देन राइट क्लिक ऑन द पर्टिकुलर सेल. इन द कॉन्टेक्स्ट मेनू देयर इज अ कट ऑप्शन. वहाँ पे एक कट का ऑप्शन होता है. सो यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन द cut option, left click on the cut option, and then go to that path where you want to just paste the copied data and then click to paste. जब भी आप वहाँ पे पेस्ट करोगे तो जहाँ से आपने डेटा कॉपी किया वो डाटा वहाँ से हट जाएगा और अभी जहाँ पेस्ट किया वहाँ पे वो डेटा पेस्ट हो जाएगा. सो आई होप सबका क्लियर है. नाउ यू कैन यूज़ द शॉर्टकट कीज ऑल्सो. मैंने जैसे पहले के प्रोसेस को भी बताया, यू कैन जस्ट यूटिलाइज बोथ द प्रोसेस इनटू दिस मूविंग द डेटा. सो उसके थ्रू भी डेटा मूव हो जाएगा. सो आई होप सबका क्लियर है, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है. अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो यू कैन जस्ट आस्क टू मी. सो नाउ आई होप कि सबका क्लियर है हम लोग कैसे डेटा को मूव करते हैं, कैसे कट करते हैं. मैंने मूव करने के लिए जो प्रोसेस और भी दो कॉपी करने के प्रोसेस बताए थे उसे भी यूटिलाइज करोगे. लाइक यू हैव टू जस्ट यूज़ द Ctrl+S. दैट मीन्स कि एक्टिवेट द सेल एंड देन प्रेस द Ctrl+X. देन द डेटा विल बी कट फ्रॉम दैट प्लेस एंड गो टू दैट प्लेस वेयर यू वांट टू पेस्ट. देन जस्ट प्रेस द Ctrl+V. द डेटा विल बी जस्ट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस. वहाँ भी वो डेटा क्या करेगा, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कर जाएगा. सो दिस इज द शॉर्टकट मेथड ऑन मूविंग द data or a range of data. One more thing I want to just discuss. When you just move the range of data, अब हमें एक रेंज ऑफ डेटा को मूव करना है या रेंज ऑफ सेल को मूव करना है या रेंज ऑफ सेल को कॉपी ही करना है. दोनों का प्रोसेस सेम होगा, ठीक है. बस देख लो, एक में कट यूटिलाइज करना है और एक में कॉपी यूटिलाइज करना है, तो दोनों का प्रोसेस सेम. अगर हमें रेंज ऑफ सेल को कट करना है या कॉपी करना है या
जो भी करना है, अगर उस कंडीशन में अगर रेंज ऑफ सेल करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग करेंगे फर्स्ट वी हैव टू जस्ट सेलेक्ट द रेंज ऑफ द सेल। सबसे पहले हमें मल्टीपल रेंजेस को सेलेक्ट कर लेने, यानी मल्टीपल सेल्स को सेलेक्ट कर लेने, नॉट रेंजेस। सो मल्टीपल सेल्स को सेलेक्ट कर लेने हैं जितने को हमें कॉपी करना है या कट करना है, ठीक है। सो सबसे पहले उसे सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद नाउ अगेन प्रेस द कंट्रोल प्लस सी और द कंट्रोल प्लस एक्स, वट एवर यू वॉन्ट टू just do the actions. So you have to just by the way you have to just put the control plus C. So when you just press the control plus C, the cell border will be highlighted into a hash sign, मैंने बता रखा है। So now go to that place where you want to paste and then control plus V, then the data will be pasted on that particular place. that means कि the range of data, वो पूरा का पूरा सेल जो है, रेंज ऑफ सेल जो है वो एक जगह से सॉरी वो तो वहाँ रहेगा ही, कॉपी हमने किया है तो कॉपी वहाँ भी रहेगा और यहाँ वो पूरा का पूरा रेंज पेस्ट हो जाएगा। सो आई होप कि किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। शॉर्टकट की ऑफ कॉपी दैट इज़ अ कंट्रोल प्लस सी, शॉर्टकट की ऑफ कट और मूव कंट्रोल प्लस एक्स, एंड शॉर्टकट की टू पेस्ट द डेटा कंट्रोल प्लस भी। तो आई होप कि सबको ये शॉर्टकट कीज पता होंगे, कहीं कोई कन्फ्यूज़न किसी का नहीं है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ अ चेंजिंग फॉन्ट स्टाइल। यू नो अबाउट द फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल होता क्या है, एक्चुअल में फॉन्ट स्टाइल करते क्या है। नाउ फॉन्ट स्टाइल डिपेंड अपॉन द सम फॉर्मेटिंग फीचर्स ना। सो फॉर्मेटिंग फीचर्स, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ फॉर्मेटिंग। सो सबसे पहले हम लोग फॉर्मेटिंग फीचर्स को देखें। फॉर्मेटिंग का डिफिनेशन क्या होता है। सो जनरली फॉर्मेटिंग दैट मीन्स कि टू फॉर्मेट समथिंग that is look wise more and more attractive while you are just going to the party, then you can just prepare yourself, your dressing sense, your get up. So उस समय क्या होता है, तुम अपने आप को फॉर्मेट करते हो, अपने आप को चेंज करते हो। दैट मीन्स व्हाट, योर अपीयरेंस इज गुड। अपने अपीयरेंस को अच्छा करने के लिए कि लोग हमें देखें तो अच्छा बोलें, लोगों की नज़र में आने के लिए यू हैव टू जस्ट चेंज योर फॉर्मेटिंग स्टाइल। अपने आप को फॉर्मेट करते हो, अच्छे ड्रेसअप सेंस लेते हो, अच्छे लाइक हेयर स्टाइल रखते हो, या बहुत सारे फॉर्मेटिंग फीचर जो अपने पे यूटिलाइज करते हो ताकि तुम वहाँ उसका तुम्हारा जो अपीयरेंस हो उस जगह पे वो बहुत ही बेहतर हो। सो द सेम थिंग इज इन अ टेक्स्ट ऑल्सो और द फॉन्ट ऑल्सो। सो फॉर्मेटिंग दैट मीन्स कि टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट। अब यहाँ टेक्स्ट की बात कर रहे हैं तो हम लोग टेक्स्ट को लेंगे कि टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट। टेक्स्ट के अपीयरेंस को, विजिबिलिटी को लुक वाइज और भी अट्रैक्टिव बनाना। अब जैसे ये स्क्रीन जो तुम्हारे सामने है, अगर यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट लिखा होता, एक जनरल फॉर्मेट में टेक्स्ट लिखा होता, तो आई होप कि किसी को देखने में अच्छा ना लगता, बस देखते कि हाँ चलो ठीक है लिखा हुआ है पढ़ लेते, बट उसमें अट्रैक्शन नहीं होता। जबकि वही चीज़ें अगर पिक्चराइज वे में और टेक्स्ट को कहीं पे बोल्ड, कहीं पे बुलेट्स, कहीं पे नंबरिंग्स, कहीं पे टेबल्स, ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मेटिंग फीचर्स को यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो उस कंडीशन में तुम्हें जो पेज है वो क्या लगता है कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है और तुम उसे आसानी से समझ भी जाते हो। यू आर जस्ट रीड द टेक्स्ट एंड यू जस्ट सी द पिक्चर्स, यू कैन जस्ट इजीली अंडरस्टैंड व्हाट द पर्टिकुलर पैराग्राफ सेड, वो क्या कह रहा है वो तुम आसानी से समझ सकते हो, तो कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता है। सो दैट इज़ द सेम वे इनटू द फॉन्ट। सो यू हैव टू जस्ट चेंज द फॉर्मेटिंग फीचर्स ऑफ द टेक्स्ट। टेक्स्ट के फॉर्मेटिंग स्टाइल को और भी बेहतर बनाना। बाय व्हिच पर्पस, लाइक bold, italic, underline, change the font color, change the highlighting color. So there are different types of formatting features you have to just utilize into the font. Then the font will be more and more attractive and the font will be more and more appearance into the particular place. So वहाँ पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। सो इसलिए हम लोग फॉन्ट को चेंज करते हैं। फॉन्ट स्टाइल क्या होता है, इट्स स्टाइल ऑफ द फॉन्ट। फॉन्ट का स्टाइल जो होता है दैट मीन्स कि लुक वाइज फॉन्ट कैसा लगता है। अब फॉन्ट लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे हम लोग देखो अगर कभी ए लिखें, बी लिखें या क ख ग घ लिखें या कुछ भी हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो, कुछ भी लिखो, तो तुम्हारे लिखने का बहुत सारा तरीका होता है। कुछ लोग उसे सिंपल लिखते हैं, कुछ लोग उसे कर्सिव लिखते हैं, कुछ लोग उसे कर्सिव में भी थोड़ा बेहतर लिखते हैं और कुछ लोग उसे जनरल में भी थोड़ा सा और बेहतर करके लिखते हैं। दैट मीन्स कि एक टेक्स्ट को, एक अगर ए की बात करें तो उस ए को लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं। सो दैट इज़ अ फॉन्ट स्टाइल। सो वैसे फॉन्ट स्टाइल हमारे वर्ड प्रोसेसर या स्प्रेडशीट में भी हैं,
ठीक है, हम उससे अपने टेक्स्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। अब देखें हम लोग कुछ कुछ लाइक सबसे पहले हम इसे करते कैसे हैं, इसे चेंज कैसे करते हैं, सबसे पहले स्टेप देख लें, फिर हम लोग बात करते हैं कुछ एक फॉर्मेटिंग फीचर्स की। सो सबसे पहले यू हैव टू जस्ट सेलेक्ट द टेक्स्ट वेयर यू वांट टू change the style of the font and change the color of the font also. So first you have to just select the text. सबसे पहले क्या करना पड़ता है, टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ता है। विदाउट सेलेक्शन वी कैन नॉट अप्लाई द फॉर्मेटिंग फीचर्स इनटू द टेक्स्ट। सिलेक्शन के बाद क्या करना पड़ता है, जस्ट गो टू द फॉर्मेटिंग टूल बार। देयर इज अ फॉर्मेटिंग टूल बार इनटू द स्टैंडर्ड टूल बार ऑप्शन और द प्रेस F11। F11 इज अ शॉर्टकट की टू जस्ट कैरेक्टर फॉर्मेटिंग टूल बार। F11 क्या होता है, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग टूल बार का जो शॉर्टकट की है। सो यू हैव टू press F11 also, but otherwise there is a option into the standard toolbar also. Standard toolbar में भी formatting toolbar का option होता है। You have to just click on the formatting toolbar. Now there is a different types of options like font style, font size, bold, italic, underline, mud cell. There is a alignments, there is a like a increment and decrement, that means indentation, increase indentation and decrease indentation, background color, font color, borders. So there is a and there is a different types of symbols also, like a currency, rupees. There is a different types of symbols into the like a formatting toolbars options. वहाँ formatting toolbar option में बहुत सारे symbols होते हैं, बहुत सारे formatting features होते हैं। So ये सारे formatting features के बारे में हम लोग देखें कि one by one ये formatting features होते क्या हैं। So to the font we can just change the style of the font। फॉन्ट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, फॉन्ट का स्टाइल चेंज करते हैं। दैट मीन्स कि जो उसके लेटर्स को है, उसके लेटर्स को हम लोग चेंज करते हैं। नाउ द अनदर वन दैट इज अ फॉन्ट साइज। सो इनटू द फॉन्ट साइज वी हैव टू जस्ट चेंज द साइज ऑफ द फॉन्ट। सबसे पहले हम लोग जाने कि फॉन्ट का साइज है। फॉन्ट का साइज क्या होता है, फॉन्ट को हम लोग बड़ा और छोटा कर सकते हैं। जो हमारा टेक्स्ट होता है, जो हमारा लेटर होता है, जो हमारा नंबर होता है, उसके साइज को हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं बाय द पिक्सल ऑप्शंस। यहाँ पे नंबर्स होता है 11, 12, 13, 14, वट एवर यू वांट टू जस्ट इंक्रीज द साइज। यू हैव टू जस्ट पुट द साइज लाइक अ 12, 13, 14, वट एवर यू वांट। नाउ द बोल्ड, बोल्ड दैट मीन्स द टेक्स्ट विल बी इन अ बोल्ड। बोल्ड का मतलब होता है आपका जो टेक्स्ट है थोड़ा सा हाईलाइटेड हो जाए, बोल्ड हो जाए। जो जनरल फॉन्ट होता है, जनरल फॉन्ट से हमारा बोल्ड हो जाए। एंड द शॉर्टकट की दैट इज अ Ctrl+B। Ctrl+B जो होता है उसका शॉर्टकट की होता है बोल्ड करने का। नाउ इटैलिक दैट मीन्स योर टेक्स्ट इज इन अ लाइक अ कर्वी मोड। तुम्हारा जो टेक्स्ट है वो कर्सिव मोड में आ जाता है। इट्स लाइक थोड़ा सा तिरछा हो जाता है। सो द शॉर्टकट की दैट इज अ Ctrl+I। यू ऑल नो अबाउट दैट द शॉर्टकट की। दीज आर द like basic of the like word or the spreadsheet. So you all know about that, I hope. So underline that means the selected text will be in a underlined. So selected text होता है वो क्या होता है, वो underline हो जाता है। So that means कि while you are just writing some topic, so first you have to just create the हेडिंग्स। सो द हेडिंग्स विल बी इन अंडरलाइन मोड। हेडिंग्स जो होता है वो अंडरलाइन मोड में होता है, क्योंकि हमें पता रहता है कि इसके बारे में लिखना होता है। सो यू हैव टू जस्ट पुट द अंडरलाइन आल्सो। नाउ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ colors. So colors that means it's a font color or a background color. So when you are just click to the font color, it's look wise in a size, A shape में रहता है, A लिखा हुआ रहता है। So when you just click on it, palette, color palette will be appear into your screen. A drop down color palette, there is a drop down option. So you have to just click on it. A drop down palette will be appear into your screen. So just choose the color, then that particular chosen color will be applied on the selected part of the text. So now there is also a background color. So background color, it's a highlighted color, आप लोग ऐसे बोल सकते हो। So when you are just selecting the text and when you are clicking on the drop down menu of the background color, so again color palette will be appear, and that palette there is a different types of colors. So you have to choose the colors, and that particular color will be appear into your सेलेक्टेड टेक्स्ट। दैट मीन्स कि वो सेलेक्टेड टेक्स्ट में बैकग्राउंड अपीयर होगा। दैट मीन्स कि जहाँ से जहाँ तक आपने सेलेक्ट कर रखा है तो वो एक रेक्टेंगुलर पार्ट बन रहा है। जब भी सेलेक्ट करोगे तो देखोगे कि वहाँ एक, जब भी सिलेक्शन के दौरान रेक्टेंगुलर पार्ट बनता है तो वो कंप्लीट रेक्टेंगुलर पार्ट जो है वो कलर हो जाता है। दैट मीन्स कि व्हेन यू आर हाईलाइटेड सम वर्ड, सम टेक्स्ट, सम लाइंस, सो जो वो हाईलाइटेड के समय जैसा लुक बनता है वो सेम लुक जो है हमारा इस बैकग्राउंड
कलर के थ्रू बन जाता है। नाउ देयर इज अ इंडेंट ऑप्शन। सो इंडेंट दैट मीन्स इंडेंट का जनरली मीनिंग होता है द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन्स, टू लाइन्स के बीच में या टू वर्ड्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग इंडेंट कहते हैं। यू कैन इंक्रीज द इंडेंट और द डिक्रीज इंडेंट बाय द इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑप्शंस। हम लोग इंडेंट को इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। दैट मीन्स कि दो लाइनों के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम लोग बोलते हैं इंडेंटेशन। सो हम लोग वहाँ पे इंडेंटेशन को इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। नाउ देयर इज अ अलाइनमेंट ऑप्शन। सो अलाइनमेंट यू ऑल नो अबाउट दैट। व्हाट इज अलाइनमेंट? अलाइनमेंट दैट मीन्स इट्स अ पोजीशन ऑफ द टेक्स्ट। अलाइनमेंट क्या करता है? ये टेक्स्ट के पोजीशन को बताता है कि टेक्स्ट का पोजीशन कहाँ पे होगा, किस साइड होगा, ये डिक्लेयर करता है। सो देयर आर जनरली 4 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट: लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट एंड जस्टिफाई अलाइनमेंट। जनरली हम लोग 4 टाइप के अलाइनमेंट को जानते हैं। ये चारों टाइप जनरली हॉरिजेंटल अलाइनमेंट में होता है। जनरली हम लोग इससे पहले जान लें कि जो अलाइनमेंट होता है वो 2 प्रकार का होता है, वर्टिकल और हॉरिजेंटल। सो हॉरिजेंटल अलाइनमेंट में 4 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और जस्टिफाई अलाइनमेंट। वहीं वर्टिकल अलाइनमेंट की बात करें तो वहाँ भी 4 ही अलाइनमेंट होते हैं, कह सकते हो। सो टॉप अलाइनमेंट, मिडल अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट एंड जस्टिफाई अलाइनमेंट। तो वहाँ भी 4 प्रकार के ही अलाइनमेंट होते हैं। जनरली बहुत सारे बुक में 4 प्रकार के अलाइनमेंट्स हैं, बहुत सारे बुक में 3 प्रकार का अलाइनमेंट्स है। तो आप लोग समझ लो, लेकिन जनरली 4 टाइप्स के अलाइनमेंट्स को हम लोग जानते हैं। सो लेफ्ट अलाइनमेंट दैट मीन्स ऑल द टेक्स्ट विल बी इन अ left side. Right alignment, all the text will be go to the starting from the right side. Center, that means all the text starting from the center of the screen. And justify, that means all the text starting from the left and ending to the राइट साइड ऑफ द डॉक्यूमेंट एरिया। लेफ्ट साइड से वो शुरू होगा एंड लास्ट राइट साइड में वो ख़त्म होगा। ठीक है, ये एकदम एक सीक्वेंशियल, एक पैरेलल वे में 1 2 3 4 लाइन, जो अब एक के नीचे दूसरा लाइन होता है, वो एक दूसरे से पैरेलल वे में चलते रहता है। इसे हम लोग बोलते हैं जस्टिफाई। द वर्टिकल की बात करें तो वर्टिकल में भी 4 अलाइनमेंट: टॉप, सेंटर, मिडल और जस्टिफाई। तो टॉप का मतलब ऑल द टेक्स्ट विल बी इन टॉप, मिडल ऑल द टेक्स्ट इनटू द middle of the cell or the document and like उसके बाद क्या होता है ये now bottom जो होता है, bottom क्या होता है? that means all the text will be in starting from the bottom side of the document or a cell. Now justify, it's the same, starting from the left and ending to the right. So I hope कि सबका क्लियर है, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। इस चैप्टर में सारी चीज़ें क्लियर वे से बता दी गई हैं। Now chapter has finished and there is a different types of questions. There is a objective question and some questions and their solutions also, and there is a let us revise. So in this screen there is a different types of MCQ question and let us revise its important points and some solution time. There is a different types of questions and their solutions also. So you have to just write all the solved question into your homework copy and MCQ that you have to just solve into your क्लास वर्क कॉपी। ये क्लास वर्क कॉपी में जो तुम्हारा ये है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है, MCQ है, उसे अपने क्लास वर्क कॉपी में कर लेना है और जो सोल्व क्वेश्चन आंसर है उसे अपने होमवर्क कॉपी में लिख लेना है। एंड देयर इज़ अ वन मोर थिंग दैट इज़ सम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन और सम असाइनमेंट्स ऑल्सो। सो यू हैव टू जस्ट write the answer of application based question into your HW copy. And there is a glossary. So glossary there is some short definitions you have to write into your homework copy. And then assignment options. So assignment, there is a different types of questions like a subjective or objective both. So you have to just do the सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर इनटू योर होमवर्क कॉपी। आपका जो होमवर्क है वो है कि ये सारे जो असाइनमेंट्स हैं उसके क्वेश्चन आंसर को अपने होमवर्क कॉपी में लिख लेना है और जितने भी सोल्व्ड क्वेश्चन आंसर है उसे भी बना लेना है। ग्लॉसरी को एक जगह अपने होमवर्क कॉपी में ही
पॉइंट आउट करके लिख लेना है। सो आई होप सबका क्लियर है, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं है और कन्फ्यूज़न होनी भी नहीं चाहिए। मैंने बाइफार्केट करके सब कुछ क्लियर कर दिया। इसके बावजूद भी अगर किन्हीं को कोई कन्फ्यूज़न होता है तो दे कैन जस्ट आस्क टू मी इनटू माय व्हाट्सएप एंड जस्ट कॉल टू मी एंड आस्क टू द क्वेश्चन। सो आई होप सबके समझ में है, क्लियर है। सो नाउ हैव अ गुड डे एंड स्टे होम, स्टे सेफ।